Hello students, welcome back. A brand new tutorial of Computer Fundamental. In this tutorial, we discuss the various input and output devices of computer. There are a lot of devices that are attached to a computer. Some of them are input devices and while others are output devices. These devices are collectively called peripheral devices. Input devices are used to enter data from outside the world into primary storage. The output devices supply the result to processing from primary storage to user. A wide variety of input and output devices is now available. For a particular application, one type may be more suitable than other type. Some of the devices are used for both input and output function. Here we start with input devices. The input devices is an electromechanical device that accepts data from outside the world and translate them into a computer can understand. In other words, devices that are used to give instruction to computer are known as input devices. The various input devices are keyboard, mouse, light pen, touch screen, joystick, MICR, OCR, etc. Here the first one is keyboard. Keyboard devices are the most common used input device today. They allow the data entry into computer system by pressing a set of key mounted on the keyboard connected to the computer system. The most popular keyboard used today is 101 keys QWERTY keyboard. The keyboard have different types of keys and the list of these keys are here. The first is alphabet keys. There are 26 alphabet keys on computer from A to Z. Numerical keys from 0 to 9. Functions keys used for some predefined special function and they are from F1 to F12. We have four cursor keys, left, right, top, bottom, and we have some other keys like delete, caps lock, backspace, enter key. All these are used according to their need or according to their requirements. Now the second input device is mouse. Mouse is the most popular powerful point to draw devices. It must have input device on modern computer and workstation because they support GUI as their primary user interface. A mouse is a small handheld device that fit in user palm comfortably. बेसिकली माउस इज जस्ट लाइक ए रियल टाइप माउस, जिसमें क्या होता है एक छोटा सा डिवाइस होता है जो एक हमारी हथेली के नीचे आ जाता है और जिसका काम क्या है मेनली ड्रैग एंड ड्रॉप करना, क्लिकिंग करना, बिकॉज मोस्ट इन टुडे वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आर GUI बेस and most applications are work with clicking and dragging. So mouse is the one of the most popular input device after keyboard. They are mainly four mouse action: click, double click, right click, drag and drop. We have different types of mouse. The first one is mechanical mouse. The first mouse was a mechanical design based on a small ball that is resided through its bottom and rotated as the mouse was pushed along a surface. In general, the rotating ball has a texture and is made of rubbery component that grip even on the smooth surface. बेसिकली क्या होता है जो हम पहले यूज़ करते थे, ज़्यादातर हमारे पास मैकेनिकल माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस में क्या होता है उसके बॉटम में क्या होती है एक बॉल सी होती है रबड़ की, और जैसे यूजर उसे पुश करता था उसे प्रेस करता था माउस को, उसके साथ क्या करता था कर्सर माउस को जैसे पुश करके उस पर मूवमेंट करता था, सेम वही मूवमेंट जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर के साथ होती थी। द सेकेंड इज ऑप्टिकल माउस। द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू द मैकेनिकल माउस इज optical mouse. Instead of rotating ball, the mouse use the light beam to detect the movement across the space. बेसिकली आज जो हम माउस यूज़ करते हैं वो सारे के सारे मेरे पास जो है ऑप्टिकल माउस होते हैं। इसमें क्या होता है जो बॉल थी पहले रोटेटिंग की वो नहीं होती है, अब यहाँ पे क्या होता है मेरे पास एक लाइट बीम होती है और जैसे जैसे उस बीम माउस को मैं मूव करता हूँ वो अकॉर्डिंग उसी के साथ क्या करता है मेरी स्क्रीन पे जो है मेरा पॉइंटर मूव करता है। हेयर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ माउस। Here the first one is advantage. It is possible to select option faster. Multiple icons, files, folder can be selected at once. It take very little space. It is very easy to use and very low cost. It is very small in size. Here some disadvantage. Some people have restricted hand movement, cannot use easily. Mouse get damaged easily. They require a flat surface to be used. It need clean regularly. Dragging the mouse making difficult in use sometimes. Basically
एडवांटेज इसमें हम बोल सकते हैं कि सस्ता होता है काफ़ी ज़्यादा, साइज़ बहुत छोटा होता है, इजीली क्लिक कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। डिसएडवांटेज में बोलता हूँ कि थोड़ी सी स्किल्स की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम हम माउस को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़राब जल्दी हो सकता है, डैमेज जल्दी हो जाता है, ड्रैगिंग करना थोड़ा मुश्किल है, लाइक स्किल्स की ज़रूरत है। रेगुलरली मुझे उसे क्या करना पड़ता है, क्लीन करना ही पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। Now, the third one is digitalizer. A digitalizer is an input device used to convert picture, map, and drawing into digital form from storage in computer. It allows artists to create handheld images and graphical images with motion and action. बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक डिवाइस है मेरे पास जिसमें क्या कर सकते हैं हम, जो क्या करता है मेरी पिक्चर्स को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, मेरे कंप्यूटर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बेसिकली आर्टिस्ट को अगर मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई कार्टून बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो इसके ऊपर बनाता है और बाद में उसे आराम से वो कंप्यूटर में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है ये मेरे पास एक तरह से, किसमें, ड्राइंग वगैरह करना। बेसिकली हम टैबलेट बोल सकते हैं एक तरह से, इसे टैबलेट का एग्जाम्पल बोल सकते हैं डिजिटलाइजर को हम, लेकिन टैबलेट से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा एडवांस होता है ये। एडवांटेजेस, इट इज़ मच मोर नेचुरल टू ड्रॉ ड्राइंग्स or diagram with pencil type implement called stylus. A great level of accuracy can be achieved. Disadvantage, not really suitable for general selecting work such as pointing or clicking. A graphical tablet are much expensive than mouse. Basically इसको चलाने के लिए जो मुझे एक डिवाइस चाहिए होता है पेंसिल की तरह, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलिस, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देता है। दूसरी चीज़ है स्टाइलस जो होता है वो बेसिकली हम हर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम इसके अंदर बेसिकली ड्राइंग पर्पस यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जो मेरे ग्राफिकल डिज़ाइन इस चीज़ के लिए टैबलेट होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। नाउ इमेज स्कैनर और ए स्कैनर, इमेज स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसलेट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड in computer. The input document may be typed, picture, graphic, even handwritten material. The input device has been found to be very useful for preserving paper document in electronic form. बेसिकली स्कैनर का काम क्या होता है, मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, पिक्चर को, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में एक डिजिटल फॉर्म में रखना होता है। लाइक मेरी डीएमसी हो गई, मेरे फोटोग्राफ्स हो गए, मुझे सारे के सारे कंप्यूटर में रखने होते हैं। जो पुराने फ़ोटोग्राफ्स जो मैं फ़िल्म्स करता था, फिल्म्स के साथ जो फ़ोटो बनाई होती थी, तो वो सारे मुझे क्या करने पड़ते हैं, टाइम के साथ वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर मुझे उन सभी को कंप्यूटर में रखना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, स्कैनर। तो बेसिकली मेरे पास दो तरह के स्कैनर, द फर्स्ट वन इज़ हैंड हेल्ड स्कैनर एंड द सेकंड वन इज़ फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर वही स्कैनर जो डे टू डे रूटीन में हम यूज़ करते हैं, बट द हैंड हेल्ड स्कैनर इज़ वेरी स्मॉल, कैन बी हेल्ड इन ए हैंड. These are less expensive and less wide. In order to scan a single paper, multiple passes are required, but in handiness is the main advantage of handheld scanner. बेसिकली हैंडहेल्ड स्कैनर का एक छोटा सा डिवाइस होता है मेरे पास जिसके साथ में पिक्चर्स को स्कैन कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है इसकी कि अगर मुझे एक सिंगल पेज को भी स्कैन करना है तो मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो एक एक लाइन या एक एक अपने हिसाब से मल्टीपल टाइम जो है उस चीज़ को मुझे लेफ़्ट टू राइट मूव करना पड़ता है। लेकिन द सेकंड वन इज फ्लैट बेड स्कैनर। देयर आर लार्ज एंड मोर एक्सपेंसिव स्कैनर दैट create higher quality images. These scanners have flat surface on which printed image to be scanned and placed. A flatbed scanner can scan a picture in single pass. बेसिकली जो स्कैनर हम लोग यूज़ करते हैं हम फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हैं। एक स्कैनर होगा जिसके अंदर हम पेज रखेंगे और वो पूरे के पूरे पेज को क्या करता है, वन टाइम में स्कैन करके जो मेरे पास दे देता है। हेयर सम एडवांटेजेस। The first one is flatbed scanner are very accurate and produce high quality image. Any image can be digitalized by scanner can then include in electronic document. Image can be digitalized, can be enhanced graphical application. Even old material can be converted easily into digital form. Here we have some disadvantage. Image produced by scanner can take lot of memory space. Image lost some quality or lose some quality in scanning and digital processing. The quality of final image depend on the quality of original image. All these are advantages and disadvantages of scanner. Now we have a light pen. A light pen is also a pointing device, have same size and shape similar to that a regular pen. A input device that utilize the light sensitive detector to select object on the display screen. A light pen is similar to the mouse except that with the light pen you can move the pointer and select object on displaying screen by directly point to the object with the pen. The light pen is a primary used for graphical work. This type
अ टिपिकल यूज ऑफ लाइट पेन इज़ यूज टू ड्रॉ ए वेरियस थिक। बेसिकली होता क्या है, लाइट पेन क्या है, जिस तरह मेरा माउस होता है, माउस का काम है किसी भी चीज़ को पॉइंट करना या सिलेक्ट करना, सेम काम आता है लाइट पेन का भी। किसी भी चीज़ को पॉइंट करना, सिलेक्ट करना, वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, पॉइंट हमारे लाइट पेन की हेल्प से कर सकते हैं। अलग अलग रोटेशंस में, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शेप में, अलग अलग लोकेशन उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने यूज़ किया होगा या देखा होगा तो क्रिकेट में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे ड्राइंग के पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ वी हैव सम एडवांटेजेस। द लाइट पेन अलाउ यू टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन डायरेक्टली। अ लाइट पेन डज नॉट नीड एनी स्क्रीन कोटिंग। A light pen is very useful for point selecting and drawing. A light pen is accurate as it draws directly on the display screen. The implementation of light pen is very simple and easy. A light pen is very easy to use. The light pen is more reliable than touch screen. Now we have some disadvantages. Light pen require moving hand for the from keyboard to use. It is very difficult to use a light pen when working for a long period of time. A light pen work only with CRT based screen. A light pen is sensitive to dust that can interfere with IR beams. बेसिकली जो लाइट पेन हम सब यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं हमारे पास। टीचिंग के लिए हम स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम स्टाइलस जैसा एक लाइट पेन यूज़ कर लेते हैं, जो हमें सिलेक्शन करने के लिए, किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये हैं कि अगर मैं ज़्यादातर इसके साथ ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, ये कीबोर्ड का एक अल्टरनेट नहीं आ सकता है, क्योंकि कीबोर्ड का काम एक अलग चीज़ है, माउस का काम अपनी जगह है और लाइट पेन अपनी जगह काम करता है। बेसिकली ज़्यादातर ये CRT बेस्ड स्क्रीन्स के साथ काम करता है। तीसरी चीज़ इसकी है कि लाइट सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये IR बीम, इंफ्रारेड बीम्स के साथ काम करता है। अगर थोड़ी भी डस्ट है IR के ऊपर पड़ गई या उसके पॉइंटर डिवाइस पे पड़ गई है तो ये काम नहीं करता है अच्छे से। The next one is barcode reader. These devices are generally available in supermarket, bookshop. Barcode reader is or photoelectronic scanner that read the barcoded and vertical zebra stripe marks printed on the product container. Basically barcode reader जो होते हैं ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे मैंने किसी चीज़ को स्कैन करना है। किसी चीज़ पे एक स्ट्रिप सी बनी होती है ब्लैक कलर की, उनके नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं। अगर मुझे उस चीज़ को स्कैन करना है तो मुझे एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं बारकोड रीडर। ज़्यादातर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यूज़ करता है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये होता है पॉइंट टू सेल टर्मिनल्स पे, जहाँ पे मैं चीज़ें बेचता और ख़रीदता हूँ। तो नो वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ बारकोड। इट अलाउ रियल टाइम डेटा टू बी कलेक्टेड एक्यूरेटली। इट अनेबल फास्ट डाटा एंट्री ऑपरेशन विद लेस एरर। इट इज़ ए मेच्योर एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इट इज़ सिंपल एंड लाइटर। बेसिकली क्या होता है, बारकोड हमेशा जो है रियल टाइम डेटा के साथ काम करता है। मेरा प्रोडक्ट कितना भी पुराना हो, जो उसका उस टाइम रियल बेस पे चीज़ चल रहा होगा, जो प्राइस चल रहा होगा या रियल टाइम पे जो भी चीज़ चल रही होगी उसके हिसाब से वो काम करता है, क्योंकि बारकोड हमेशा कंप्यूटर पे रीड करता है, कंप्यूटर में उसका डेटा फीड होता है, तो कंप्यूटर का डेटा हमेशा चेंज होता है या कुछ भी, तो बारकोड जो होता है उस डेटा के साथ काम करता है। दूसरा, एक्सपेंसिव नहीं होता है। 1000 12 इवन 1500 to 2000 तक हमारे पास जो बारकोड स्कैनर जो है आ जाते हैं। बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट लाइट द बारकोड स्कैनर ऑलवेज वर्क विद कंप्यूटर और POS मशीन। अब बारकोड डू नॉट हैव रीड और राइट कैपेबिलिटी। ठीक, इट इज़ लेस सिक्योर देन अदर टेक्नोलॉजी। स्क्रैच्ड बारकोड में कॉज प्रॉब्लम वाइल स्कैनिंग। ठीक है, ज़्यादातर बारकोड स्कैनर जो है हमेशा ही कंप्यूटर के साथ ही काम करता है या POS मशीन्स के साथ काम करता है। बारकोड्स में थोड़े से भी स्क्रैचेस पड़े हैं या ठीक नहीं है तो बारकोड स्कैनर उस चीज़ को रीड नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसिटिव नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इसकी कि अगर मेरे बारकोड पे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं तो बारकोड के जो नीचे नंबर लिखा होता है उसे इजीली मैं अपने POS टर्मिनल या कंप्यूटर में डाल के उस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ले सकता हूँ। द नेक्स्ट वन इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR इज सिमिलर टू अनदर हमारे स्कैनिंग डिवाइस लाइक OCR। इट इज़ यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री सो फास्ट फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ large volume of check handled every day by the industry. A bank check has a bank identification code, account number, check number pre-printed on it by using character or some special character set. A special ink containing particles of iron oxide is used to
pre-printing the character on the check. Since the MICR system can recognize only certain character style, the character have accurate form. बेसिकली MICR जो होता है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा बैंकिंग में, क्योंकि जो मेरा चेक होता है उसके नीचे चेक के नीचे नंबर लिखा होता है, जो नंबर एक स्पेशल इंक में लिखा होता है, एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा होता है, वो उसे ही रीड करता है। क्योंकि बैंक ने क्या होता है, दिन में बहुत सारे चेक को प्रोसेस करना होता है। हर चेक को अगर मैनुअली करने लगे तो बहुत टाइम लग जाता है, चेक गुम होने का खतरा, कई चीज़ें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो MICR से फ़ायदा होता है कि हर चीज़ वो क्या कर लेता है, कंप्यूटराइज कर लेता है। नाउ सम एडवांटेजेस: फास्ट प्रोसेसिंग, स्पीड ऑफ चेक, increased efficiency, more security than other technology, and document is not easy to forgive. Disadvantage: very limited number of characters are used in this technology. Use of MICR technology is much more expensive. It only recognizes 10 digit or 4 special characters. Here these are some advantages and disadvantages like other technology. Now next one is OMR, optical mark recognition. Optical mark recognition, also called mark sense reader, is a technology where an OMR device senses the presence and absence of marks such as pencil mark. OMR is widely used in a test such as aptitude test. बेसिकली OMR टेक्नोलॉजी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे मैंने टेस्ट लेने होते हैं, और वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं OMR टेक्नोलॉजी। OMR में होता क्या है, जो भी मेरे डॉट्स लगे, जो मेरे सर्कल्स लगे हैं, तो उनको मैं पेंसिल से डॉट को क्लिक कर देता हूँ, पेंसिल्स के साथ उनको मार्क कर देता हूँ। और जो मेरा OMR होता है, रीडर होता है, वो क्या करता है, उसी चीज़ जो उन्हीं डॉट्स को रीड करता है जो मेरे मार्क किए होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो है रिजल्ट देता है। We have some advantage and disadvantage like other technology. Large number of data, large volume of data can be collected quickly and easily without need of specific trained staff. A cost of inputting data and the chance of data input error can be reduced. Only one computer needed to collect and process data. Disadvantages: OMR reader are repeatedly slow as compared other optical scanner. Only suitable for multiple choice question. MR is required to fill clearly, otherwise OMR is not read. A document for optical mark recognition is complicated to design. It is very expensive. Like इसके लिए जो सारा का सारा डेटा होता है मैं एक कंप्यूटर में कलेक्ट करके रख सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम जो होता है सॉफ्टवेयर ने करना होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि बेसिकली ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ ही काम कर सकता है, सिंपल टेक्स्ट के साथ इट कैन नॉट बी सूटेबल, है ना, इट कैंट बी सूटेबल विद इनपुट टेक्स्ट। दूसरी चीज़ होती है कि अगर मैंने मार्क्स जो करेक्टली अच्छे से क्लियरली नहीं किए होते हैं, OMR विल नॉट रीड द मार्क करेक्टली। अगर मैंने किसी चीज़ को मार्क नहीं किया हुआ है अच्छे से, तो उस चीज़ को रीड नहीं करता है। अगली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नाउ वी हैव ए ट्रैक वॉल। अ ट्रैक वॉल इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क लाइक एन अप साइड डाउन माउस। द ओनली डिफरेंस इज दैट द वॉल in case of track wall is placed on the top along with the button of the track wall. The movement of cursor is controlled by the movement of wall by the finger. The track wall is mostly common used in नोटबुक, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। बेसिकली क्या होता है, जिस तरह मेरा माउस होता है उसी तरह का एक डिवाइस है, पर ये क्या होता है, मेरे लैपटॉप के ऊपर ही अटैच होता है। पहले आता था, अब तो ज़्यादातर फेमस नहीं है इतना ये, तो हम इसी तरह इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम उस बॉल के ऊपर अपना हैंड या फिंगर प्रेस करते जाते हैं, माउस की पोजीशनिंग जो है, जो पॉइंटर की पोजीशनिंग है मेरी स्क्रीन पे, उसे वो कंट्रोल करता है। तो मोस्टली सूटेबल इन पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लेस स्पेस रिक्वायर्ड एंड इट इज़ प्लेस्ड एनीवेयर इन द सरफेस। इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। Now some disadvantage: the one of the most disadvantage is that it is not accurate as mouse. It is expensive, difficult to use, and due to small demand nowadays it is not operated. Now we are not configuring nowadays this device. बेसिकली क्या है, माउस की तरह एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यूज़ करना बहुत मुश्किल है, और आज के टाइम पे बहुत ही कम यूज़ हो रहा है, इसे हम इवन डिज़ाइन ही नहीं कर रहे हैं अब। OCR. OCR is a optical character recognition involve reading text from paper and translate into image in form of that computer can manipulate. In other words, we can say that the scanner is equipped with OCR software that convert bitmap images of characters into ASCII code. An OCR system enable you take a book or magazine article and feed directly into electronic form. The most of these devices are basically used in banking, insurance sector, airlines, etc. Even in library we use these devices.
बेसिकली मुझे पता है, मेरे पास कोई बुक है, बुक के अंदर टेक्स्ट है, मुझे पूरी की पूरी बुक को ट्रांसलेट करना है कंप्यूटराइज फॉर्म में। तो वही क्या करता है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को क्या करता है, एक इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। और उसको क्या कर देता है, वो इमेज की फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। एंड देन कन्वर्ट द बिटमैप इमेजेस ऑफ करेक्टर टू एस्काई कोड, उस चीज़ को, उसमें कोड को कन्वर्ट कर देता है। और उसे हम फाइल को कंप्यूटराइज फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, जहाँ मेरे पास बहुत सारा डेटा होता है, तो उसे हम OCR के साथ जो कंप्यूटराइज कर सकते हैं। Advantage: it reduce manual keystroke operation. It can also read the handwritten character. It save the time and money for transforming the data. It can easily and quickly convert printed text into electronic form. We have some disadvantage: poor handwritten document cannot be easily read by OCR. It cannot read character printed in format other than specific format. Accuracy is not, basically क्या है, ये क्या करता है, जैसे मेरी पूरी बुक है, एक पूरी की पूरी बुक को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करके रखना है डिजिटल फॉर्म में। तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, OCR स्कैनर की हेल्प से। हाँ, OCR स्कैनर के अंदर जो करेक्टर्स हैं बाद में उसे हम फैच भी कर सकते हैं OCR सॉफ्टवेयर की हेल्प से, लेकिन वो एक अलग इशू है। दूसरी चीज़, अगर मेरे इवन ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को भी क्या कर सकता है, अपने पास जो है स्कैन करके रख सकता है। और दूसरी चीज़, अगर मेरे डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हैंड रिटन अच्छा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि OCR जो होता है हमेशा ही एक्यूरेट नहीं है, कि जो चीज़ इससे स्कैन की गई है, बाद में अगर मुझे उसे फिर से एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो मुझे एक्यूरेट डेटा नहीं देता है, कई बार मेरा डेटा लॉस्ट कर देता है। नाउ जॉयस्टिक, इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क on the same principle as the trackball. Joystick is a gear shift lever that is used to move the pointer on the screen. This lever is pushed in any direction. When it releases, it returns to original position. On most joystick button in top used to select the option. Joystick mostly used in game. बेसिकली जैसे गाड़ी का गियर होता है, वैसे एक जॉयस्टिक मेरे पास एक गियर की तरह डिवाइस होता है, जिसे मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। जैसे उसे मैं रिलीज़ करता हूँ, एक ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो ज़्यादातर मुझे मोस्टली यूज़फुल इन गेम्स, fast interface, easy to navigate, control the 3D images, the most interaction with the game. Basically joystick mostly used or commonly used to play the games. The some disadvantages of this, basically disadvantages क्या हैं, it is difficult to control that on screen pointer compared to mouse. basically mouse के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है। इजीली ब्रेक है अगर ज़्यादा हम फोर्सली, ब्रेकेबल है अगर हम फोर्सली ज़्यादा प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो थे। अ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ जॉयस्टिक और फेस टू, ज़्यादातर हम अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मेरी बाजू वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि माउस से हैंड है, लेकिन जॉयस्टिक जो मेरी काफ़ी ज़्यादा गियर की तरह यूज़ करनी, तो मेरे बाजू भी दर्द कर सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ वी हैव ए टच पैड। अ टच पैड इज टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टच पैड या ट्रैक पैड। इट डज द सेम थिंग एज द माउस ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ मेड अप ऑफ टच सेंसिटिव एंड फ्लैट सरफेस. To move the cursor on the screen, user need to slide his finger on surface. A touchpad have two buttons below them and they work like a mouse, left and right. In some modern computer, these buttons are hidden at the bottom of the touchpad. You have to press the lower left or lower right section to the touchpad of the click the button. बेसिकली टच पैड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स में। लैपटॉप के नीचे बॉटम में एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप का बना होता है, जिसमें हम क्लिक करते हैं या अपनी फिंगर के साथ उसे स्लाइड कर सकते हैं। माउस की तरह हम इसे यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में माउस एक नीड नहीं है, ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं लोग, तो टच पैड उसके लिए हम यूज़ करते थे। टच पैड में पहले क्या होता था, मेरे पास लेफ़्ट एंड राइट बटन भी बने होते थे, तो उनके हेल्प से मैं लेफ़्ट और राइट का काम जो था क्लिकिंग का काम करता। बट नाउ इन डे देयर बटन्स आर हिडन। वी कैन सिंपली प्रेस ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, द सेम वर्क लाइक एज बटन्स, है ना। जो अगर मैं लेफ़्ट साइड क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट बटन की तरह काम करता है, राइट साइड क्लिक करता हूँ तो राइट बटन की तरह काम करता है। वी हैव सम एडवांटेजेस। इट नीड नो एक्स्ट्रा स्पेस as it is integrated on the laptop. It is fast to select an option using touchpad. It cannot be used even if there is no flat surface on it. It is easy to carry with traveling as compared to mouse. It is easy, fast and finger control. It idea for portable device. Its position is fixed as compared to mouse. Basically सिंपल सा फंडा है कि एक तो ये फिक्स है, फिंगर के साथ काम कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, इजी टू यूज़ है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ता है
ये मेरे लैपटॉप के साथ इंटीग्रेट होता है। नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन specific device like laptop. These are expensive. It is very difficult when we performing drag and drop. Very difficult to control the mouse. We cannot use the touchpad wearing gloves. So it requires practice and skill to control the position of cursor on the display screen. Now we have a microphone. A microphone is used to input device. The sound is detected by the microphone and is electrical signal is transmitted to computer. Special hardware is used to convert the analog signal to digital signal, so it's stored and manipulated. That special hardware is sometimes we call it sound card. In last few years, a number of voice recognition system has been developed. These packages let the user dictate the text into computer and convert the speech to text. Nowadays we use some software where we use voice recognition or we use microphone for typing the text. Sometimes user is not comfortable with keyboard and he is not interested to type from the keyboard. Then we use voice recognition software or we voice recognition system. So we use microphone to dictate the text and that voice recognition software convert my text into or convert my speech into text. Dictating like this is very quickly typing but the software is not perfect, it can improve लाइक बट समटाइम प्रॉब्लम आ जाती है कि जो चीज़ हम बोलते हैं जो एक्सेंट मेरा है कंप्यूटर उसे अच्छे से नहीं समझ पाता है, सॉफ्टवेयर अच्छे से नहीं समझ पाता है, तो वर्ड को क्या करता है वो इनकरेक्ट टाइप कर देता है. नाउ वी हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. फास्टर टू रीड इन टेक्स्ट दैन टू टाइप. Eating using a keyboard mean that word processor can be used by people who do not use their hand. Words are simply spoken into the software instead of type, making driving safer because people do not need to take their hand off steering wheel in order to use their mobile phone. Microphone are very cheap and बेसिकली है क्या, कीबोर्ड की जगह से यूज़ करते हैं हम, तो मुझे क्या बोलना, मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं, मैं बोल लूँगा और उस चीज़ को ये क्या करता है, टाइप करता है. दूसरी चीज़ माइक्रोफोन जो है बहुत सस्ते हैं, तो मुझे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं यूज़ करनी पड़ती है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करनी पड़ती है. Now we have some disadvantages. Speaking word in word processor is not accurate as typing. Sound file can take lot of computer storage space. Background noise can interfere with the voice recognition software. Like हमारे पास जो है, जो एक्यूरेसी है टाइपिंग की जो कीबोर्ड से है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वॉइस. साउंड फाइल जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेती है. द नेक्स्ट इज वॉइस नॉइस. बैकग्राउंड नॉइस जो होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है. नाउ वी हैव ए डिजिटल कैमरा. A digital camera stores digital photograph in computer memory and these images are easily transferred into computer for viewing and editing. Most digital camera has built-in screen to allow for previewing the digital photo. This is useful to show that the photographer can decide which image he want to keep or which image he want to delete. A digital image quality is measured in megapixel. These are the numbers of dots that make an image. Generally speaking, the higher the megapixel the higher detail qualities of image. बेसिकली डिजिटल कैमरा का काम है मेरे फ़ोटो को मेमोरी कार्ड में या कंप्यूटर में स्टोर करके रखना. तो इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है मेगापिक्सल का, मेरा कैमरा कितने मेगापिक्सल का है. जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे उतनी अच्छी मेरी क्या होगी, क्वालिटी होगी. सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि नो फिल्म टू डेवलप. दिस मीन दैट प्रोड्यूस फ़ोटो बहुत जल्दी आ जाते हैं. अनवांटेड इमेज कैन ईजिली डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी कार्ड बिकॉज इट इज़ डिसाइडेड बाय द फोटोग्राफर विच इमेज ही वांट टू टेक और विच इमेज ही वांट टू डिलीट. बिकॉज ऑफ इमेज ऑन डिजिटल सो इट इज मेक ईजी टू कॉपी. डिजिटल में ईजी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम बाय यूजिंग वॉइस, बाय यूजिंग मोबाइल, बाय यूजिंग ईमेल और समथिंग. Digital image can easily improved and editing by software. Like we have a software called Adobe Lightroom. With the help of this software, we can improve the quality of picture, like their sharpness, their video quality, their brightness, their contrast. Now we have some disadvantage. Camera user need have computer skill to able to transfer data from digital camera to computer, computer to digital camera. Okay, we need some computer skills so that we can easily transfer data from one device to another device. Not all digital camera produce good image. Artistry of traditional photography being lost. Okay, जो एक क्वालिटी थी फोटोग्राफर की वो लॉस्ट हो चुकी है बिकॉज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करेक्ट द बैड इमेज इनटू गुड इमेज.
Now we have a webcam. A webcam is soft form of web camera. Web camera or a webcam is the input device because it captures video image of scene in front of it. It is either built to the computer or laptop, or it is connected to the computer with the help of USB cable. The video signal is made up to series of individual images frame which are an instant snapshots or seen in front of it. Each image frame is sent to the computer for further processing by webcam software. If the frame rate is fast, then it become to a motion picture. बेसिकली वेबकैम का क्या होता है, फ़ोटो को कैप्चर करना या वीडियोस को कैप्चर करना। तो ये हम कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, हम लैपटॉप के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इवन लैपटॉप्स के साथ तो इनबिल्ट ही आ रहा है। तो हम काफ़ी अच्छी सॉरी हम काफ़ी अच्छी फ्रेम रेट के साथ जो है इस चीज़ को हम कैप्चर कर सकते हैं। सारे की सारी चीज़ जो मेरे कंप्यूटर में जाती है, अगर मेरी फ्रेम रेट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है तो इट बिकम में वीडियो बन जाती है, एक मोशन पिक्चर जो है बन जाती है। एडवांटेजेस: अलाउ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिजनेस मीटिंग एंड जॉब इंटरव्यू कैन बी डन बाय चिप ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। पेरेंट्स कैन कीप एन आइज ऑन देयर चिल्ड्रन। वेबकैम can left running constantly, which make them very useful. Here we have some disadvantage. The image and video quality can sometimes be poor. They do not have their own storage, so we need to fix it into computer device, are usually in fixed position, so we cannot easily move. बेसिकली जो मेन एडवांटेज ये है कि अब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कन्वर्सेशन जो है फेस टू फेस जो मैं वेबकैम की हेल्प से कर सकता हूँ। कंपनीज कंडक्ट देयर जॉब इंटरव्यूज़, बिजनेस मीटिंग विद द हेल्प ऑफ वेबकैम्स। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पे नज़र रख सकते हैं वेबकैम की हेल्प से, है ना। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि वेबकैम ईजिली जो होता है ख़राब नहीं होता है और रनिंग जितनी मर्जी देर चला सकता है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर इसे इस तरह से बनाते हैं कि इसे हम जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। मेन डिसएडवांटेज यही है इसका क्योंकि दे डू नॉट हैव देयर ऑन स्टोरेज, सो हमें ये कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर डिवाइस के साथ जो फिक्स करना ही पड़ता है। द सेकंड इट यूजली इन फिक्स पोजीशन, एक पोजीशन पे होता है, इसे हम ज़्यादातर मूव नहीं करवा सकते हैं। वीडियो क्वालिटी और इमेज क्वालिटी ख़राब हो सकती है इसकी। बेसिकली डिपेंड ऑन माई वेब कैम। बेसिकली मेरे पास फिक्स पोजीशन भी है, लेकिन मेरे पास 360 डिग्री वाले भी आ चुके हैं। मेरे पास कुछ ऐसे कैमराज भी आ चुके हैं जिनके बीच में मेमोरी कार्ड डल सकता है। और इमेज क्वालिटी डिपेंड करती है मेरे वेब कैम पे। मेनली कॉस्ट फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा मेरे इनपुट डिवाइसेस पे डिपेंड करता है कि जितना अच्छा कॉस्ट होगी, जितने अच्छे पैसे लगाऊंगा, जितनी अच्छी चीज़ खरीदूंगा, उतना अच्छा मेरा जो है वो काम करेगी। सो दीज आर आवर इनपुट डिवाइसेस। थैंक्स फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। इन नेक्स्ट lecture we discuss the output devices. So thanks. See you in next lecture.